ابھی ایک بہت بڑی جو گواہی جو ابھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں پورے ہفتے میں جب میں دعا کر رہا تھا اور بار بار ایک ہی کلام اور ایک ہی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی کہ فصل پک گئی، فصل پکی ہوئی، فصل تیار ہے، آخری ایام کہ فصل سنہری ہو گئی ہے۔ ابھی جب میں چھوٹی سی گواہی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا کہ جب ابھی سمیرا دعا کر رہی تھی تو یہ آخری نشانیوں میں سے نشان ہے جو عجیب طور پر خداوند جو ہے وہ اپنے نشانوں سے ظاہر کرتا ہے کہ جب وہ دعا اس نے شروع کی کرتے کرتے ایک آگ سی لگ گئی اور کیا ہوا کہ سب جو ہے وہ دعا کرنا شروع کر، سب نے دعا شروع کی دعا کر۔ تو میں اس بات کے لیے چھوٹی سی گواہی اس کے بارے میں دوں گا کہ سمیرا 7 دن کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہری، 7 دن کے لیے دعا اور روزے۔ جب اس نے دعا کی تو ایک بڑی آگ ایک دم آ کر ٹھہر گئی، اور جیسے یہ آگے بڑھنے لگی تو وہ نشان جو ہے وہ ظاہر خود بخود ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی دامن سے لپٹا رہوں گا میں تیرا جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا۔ تو یہ برکت جو ہے لپٹنے سے ہے۔ کبھی بھی برکت جو ہے کسی کو پلیٹ میں نہیں ملتی، اس کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کے لیے پیچھا کرنا پڑتا ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے لیے تردد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ آج جو وقت ہے یہ جو فصل پکی ہوئی ہے اور پھر فصل بھی پکی ہے تو مزدور بھی جو ہے وہ بھی تیار ہے فصل کو کاٹنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ آخری لمحے یہ جو چل رہے ہیں، آخری وقت سب سے نازک ادوار میں سے ایک ہے۔ جتنے ادوار جتنے وہ چل رہے ہیں ان کے اندر یہ ایک جو ہے وہ ایک نیا موڑ لے چکا ہے۔ ابھی بھی جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے ہم ان لمحوں کے اندر جی رہے ہیں، نہ شروع نہیں ہے، سٹارٹ نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، بلکہ ہم بیچ میں آ کر اب ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ہم نہیں بلکہ پوری دنیا اپنی زندگی جی رہی ہے، جس کا ہماری نئی نسل کو سامنا ہے۔ ہماری جو نسلیں ہیں نسل در نسل وہ اس کا سامنا کر رہی ہیں، وہ اس کے لیے جستجو کر رہی ہیں، وہ اس کے لیے بڑھ رہی ہیں، وہ اس کے لیے فکر کر رہی ہیں، وہ اس کے لیے دکھ سہ رہی ہیں، وہ اس کے لیے مصیبتیں سہ رہی ہیں۔ وہ غربت میں، تنگی میں، بدحالی کے اندر تو بھی وہ کھڑی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کھڑے رہو، لڑو گے تو جیتو گے یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ اگرچہ دنیا میں ایسی صورتحال کو اب پہنچ چکے ہیں ہم سارے، ہم دیکھ سکتے ہیں مظاہرے فطرت کی شدت میں اضافہ کر رہے ہیں اور معاشرہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ روز نئی باتیں، روز نئے فیصلے، روز نئے پلان، روز نئی خبریں، روز ملک کے نظام کے اندر تبدیلی، روز اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے تو کل پھر بدل جاتا ہے، کل اور نیا ایک منصوبہ آ جاتا ہے، بلوں کے بارے میں ایک نئی لسٹ آ جاتی ہے،
महंगाई के बारे में एक नया प्रोग्राम तरतीब होके आ जाता है। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक जो है ये सर्द आग जल रही है, खतरनाक रफ्तार से ये दुनिया बदल रही है। दूसरे लफ्जों में तमाम फितरी निशानात इससे बड़ी सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, बल्कि ये रूनुमा भी हो रहे हैं। ये सब सिर्फ इसकी शुरुआत है जिसका खुदा ने अपने कलाम में ये वादा किया है। खुदा के 7,000 से भी ज़्यादा वादे हैं, उनमें से ये जो वादा है वो भी पूरा होने के लिए जा रहा है। इसकी कलीसिया के तौर पर अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ देखते और दुआ करते हैं, बल्कि इस अजीम बेदारी का राह मुतय्यन करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, जिसका हम तजर्बा आज कलाम मुक़द्दस में से हम करेंगे। मत्ती की इंजील और उसका 9 बाब 35 से लेकर 38 आज तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे और गौर करेंगे कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया को देखा, दुनिया की भीड़ को देखा, लोगों को देखा, और देखने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने नबूवती कलाम किया। जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया, उन भेदों को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, ना सिर्फ सुनेंगे और फिर हम गौर करेंगे, और गौर करने के बाद हमको आज फैसला लेना है इस बात का कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या हम उसके अंदर पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। हालेलुया। सुनिए, कलाम में यूं लिखा है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी मनादी का आगाज किया, कोई भी जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी काम का भी आगाज़ करते हैं तो घर नहीं बैठ रहे, हमें हर काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अगर हमें जॉब चाहिए, नौकरी करते हैं तो भी हम बाहर जाते हैं, अब किसी काम के लिए तो भी हम बाहर जाते हैं। यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी उस सफ़र को कंप्लीट किया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा, जब उसने इब्लीस को शिकस्त दी, जब उसने मनादी के लिए पहला कदम उठाया, तो कलाम के अंदर लिखा कि यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शहरों के अंदर गया, खुदावंद यीशु मसीह गांव में गया, खुदावंद यीशु मसीह इबादत खानों में गया। आज भी ज़रूरत इस बात की है कि जब अगर हमने मनादी करनी है तो फिर हमें भी जाना है, हमें शहरों में भी जाना है,
हमें गाँव के अंदर भी जाना है, हमें मोहल्लों के अंदर भी जाना है, हमें गलियों कूचों के अंदर भी जाना है, हमें घर और घरानों के अंदर भी जाना है, हमें रिश्ते नातों और बहन भाइयों अजीजों के पास भी जाना है। इस मुनादी को लेकर जो खुदावंद यीशु मसीह ने सफर किया, हमें हर उस शख्स के पास जाना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उनको बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। खुदावंद यीशु मसीह भी यही तालीम लेकर गए, और सबसे पहले जो खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी और उनको यही कही, एक बात कही जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से। मसीह ने सबसे पहले जो बड़ा काम किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने तौबा की, मनादी की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। स्टार्ट खुदावंद यीशु मसीह ने तौबा ही से शुरू किया कि आज भी जरूरत है इस बात के लिए कि क्या किया जाए, तौबा कीजिए। हमें हकीकी तौबा करने की जरूरत है। एक हम सरसरी करते हैं और हमने तौबा की हुई है, लेकिन एक हमें हकीकी मुकम्मल तौबा करने की जरूरत है। जैसे कि फिर गुनाह ना करूंगा और गुनाह की राहों से मैं दूर रहूंगा। ये तौबा कि अब अहद बांधने की जरूरत है। यहाँ हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता और उनकी इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, तौबा की तालीम दे रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, बादशाही की बात कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के दुखों में भी शामिल हो रहे हैं, उनके रोगों में, उनकी बीमारियों के अंदर जो उनको थी वो सब खुदावंद यीशु मसीह देख रहा था। आज भी खुदावंद यीशु मसीह हमारे दुखों को भी देख रहा है, हमारी बीमारियों को भी देख रहा है, हमारी ज़रूरतों को भी देख रहा है, हमारी वो तंगी को भी दे रहा है, हमारी बदहाली को भी देख रहा है, हमारे कामों को भी देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक एक काम पर वो नजर रखे खड़ा है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उनको कलाम में लिखे उनकी बीमारियों को दूर किया। वो बीमारियां जो आज भी लाइलाज है, कल भी लाइलाज थी, उनका कोई इलाज नहीं था। उन बीमारियों का जो उनको लगी थी कोई इलाज नहीं था। आज भी बहुत सारी ऐसी दुनिया के अंदर बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। दवाइयाँ खाई जा रही हैं, हॉस्पिटल चेकअप बहुत सारी, उसके बावजूद उन बीमारियों से शिफा नहीं हो पा रही। लेकिन है तो फिर इलाज है जो तरह तरह की बीमारियों से शिफा देता है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जोरदार उसके लिए तारीफ बजाइए। और उनकी बीमारियों कमजोरियों को दूर करता रहा। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, वो ये क्या 120, 3000, 5000, आज दुनिया के अंदर लाखों नहीं करोड़ों है। जब इंज करके देखते दुनिया के बटन दबिए नेट के लाखों करोड़ों लोग 5 मिनट के अंदर उनका इतला पहुंच जाती है। 5 मिनट से पहले उसको खबर हो जाती है कि दुनिया के इस कोने में क्या हो रहा है। पूरब की और पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण के अंदर रिपोर्टिंग हो जाती है। यीशु दिया नजरा ने कलाम के अंदर लिखा कि देखा, क्योंकि वो उन
भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो। खुदावन आज भी हमें खुदावन की नजर से देखने की जरूरत है। उन भेड़ों को, बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी ऐसी भेड़ें हैं जिनका चरवाहा नहीं है। बहुत सारी ऐसे लोग चरवाहों के बगैर ही चल रही हैं, वो चल रही हैं। इसलिए क्या आज जरूरत है कि कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। ऐसे चरवाहों की आज कसरत से कमी है ही नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है कि जिनका चरवाहा ना हो, वो बीमार, वो कमजोर, वो गरीबी में, वो तंगी में, वो बदहाली में, वो कैद में, वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, वो मजबूरी के अंदर है, वो जकड़पन के अंदर, हालात और वाकया के अंदर वो बहुत सारे अपनी जिंदगियों के अंदर फैसले रोज करते हैं और रोज उन फैसलों को बदलते हैं, क्योंकि उनमें से वो कोई भी फैसला तो कर नहीं पा रहे। इसलिए कि ना होने की वजह से, चरवाहा ना होने की वजह से आज कितना कैद पड़ गया है, कितना काल है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त नबूवत की, क्या लगा कि खस्ता हाल है लोग और परागंदा थे जिनका चरवाहा नहीं, वो आज भी खस्ता हाल है, वो आज भी लोग परागंदा है। इसलिए बड़ी जरूरत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से कहा कि आज लोड़ है कि एक बड़ा फैसला। हालेलुया। आज हमें जरूरत है, कलीसिया पाकिस्तान को भी हमें एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा। याद रखिए कि शागिर्द को जो उसके थे, जो उसके साथ थे, उनसे उसने कहा कि हुन लोड़ पै गई जे एक बड़ा फैसला लेने की। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े। आपको मेरी बात समझ आई कि उसने क्या कहा कि फसल बहुत है, फसल सुनहरी हो गई है, फसल पक गई है, फसल तैयार है। अब क्या है कि टाइम तो हो रहा है कटाई का, लेकिन क्या है, कटाई करने वाले ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, उजरत पे भी नहीं मिल रहे। अगर उनको पैसे दिए जा रहे हैं कि फसल की कटाई करो, तो पैसे लेकर भी वो फसल की कटाई नहीं कर रहे, वो फसल की कटाई नहीं कर रहे। उनको मजदूरी एडवांस में दी जा रही है, तो भी फसलें खड़ी हैं, फसलें बर्बाद होने का डर है, कहीं फसल बर्बाद ना हो जाए। आज जरूरत है उन फसलों की जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में बड़ा फैसला लिया कि फसलें पकी है और क्या है, मजदूर थोड़े हैं। एक बड़ा फैसला जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आज भी जरूरत है उस फैसले की। मजदूर ना ढूंढे जाए, बल्कि उस फैसले पर अमल किया जाए जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा। आज भी उसे गलती जोड़ दी, कहने लगा, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए क्या भेजे, मजदूर भेजे। आज जरूरत है कि हमें खुदा से दुआ करने की जरूरत है, हमें मिन्नत करने की जरूरत है, हमें दुआ के साथ रोजा रखने की जरूरत है, हमें घुटनों के बल होने की जरूरत है, हमें खुदा के साथ वफादारी के साथ चलने की जरूरत है, और हमको दुआ करने की जरूरत है जिसका हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। उसने कहा, फसल तो पक चुकी है, फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर
भेजे। मैं आपकी जिंदगी के अंदर एक छोटी गवाही के साथ एक कहानी एक बेटी की मैं सुनाना चाहता हूँ। तो वो बेटी बहुत दुआ करती। एक समुद्र के किनारे पर उसका घर था, और समुद्र के घर जब किनारे पर उसका घर था तो वो समुद्र की जगह जहाँ रेत थी उसके ऊपर वो शाम को चलती और दुआ करती। वो सुबह भी वहाँ दुआ करती, वो शाम को भी दुआ करती, और इस बात के लिए कि खुदा क्या मजदूर भेजे। वो दुआ करती रही उन दुखों के लिए, उन मुसीबतों के लिए जो आज जड़ा वाले में नहीं बल्कि मुल्क के बहुत सारे हिस्सों के अंदर रूनुमा हो रहे हैं। बहुत दुख जो मुकाशवा के अंदर जिक्र है कि जो दुख तुझे सहने हैं उससे तू खौफ ना कर। वो उस आलम के अंदर जब वो दुआ करती और उसने घूमते हुए देखा तो उसके पीछे एक और कदम उसके साथ चलने शुरू हो गए। और जब उसने देखा कि मैं दुआ कर रही हूँ तो मेरे साथ खुदा में यीशु मसीह भी कदम मिलाकर मेरे साथ कर रहा है, तो वो और मेहनत करने लगी, वो और दुआ करने लगी, वो दुआ कलाम रोजे के अंदर और उसने बढ़ना शुरू कर दिया। और बढ़ते बढ़ते और आंसू के साथ दुआ में कलाम में वो गहरी होती गई। और जब वो इस खुशी के आलम के अंदर कि मैं जब दुआ करती हूँ तो खुदावन मेरे साथ साथ चलता है, तो उसके अंदर रूहानी फख्र आना शुरू हो गया। उन्हें क्या खुदावन तेरा शुक्र है कि जब मैं दुआ करती हूँ तो तू मेरे दुखों के अंदर, मेरी मुसीबतों के अंदर, मेरी गुर्बत के अंदर, मेरी बीमारी रोगों के अंदर तू मेरे साथ साथ है। और जब एक दिन उसने देखा कि वो जो दुआ कर रही थी तो वो जो कदम उसके साथ साथ पीछे वो देखती थी नज़र आ रहे थे, और एक दिन वो कदम भी मिट गए और उसे वो नज़र ना आए। जब उसे नज़र ना आए तो उन्होंने कहा खुदावन तूने मुझे छोड़ दिया, इन दुखों में मुझे तूने छोड़ दिया। और वो रोई और दुआ में तो फिर एक आवाज़ जो उसके कानों के अंदर आई वो उसे कहने लगा कि वो जो कदम जो तू पीछे पीछे देख रही थी वो जो कदम है मेरे नहीं तेरे थे, क्योंकि अब वो तू जो है मैंने तुझे अपने गोद में उठा लिया है, और जिन कदमों को तू देख रही है वो मेरे हैं। हालेलुया। खुदावंद ने उसे अपने हाथों में उठा लिया, गोद में ले लिया। आज जरूरत इस बात की है कि हम देखते हैं कि खुदावंद ने क्या किया है, कि खुदावंद ने कलीसिया को, पूरी दुनिया की जो कलीसिया जो दुखों में जो इज़ारे सानी मुसीबतों के अंदर है, आज यीशु ने की कीता है अपनी गोद उठाया है। हालेलुया। उसने अपनी गोद में उठाया। आज चर्च इतने मुतहद नहीं हुए इतने कि वो मसीह के हुक्मों की तकमील के लिए जाकर दुनिया में अंजील की बुनियादी करें, यहाँ तक कि अपने घर मोहल्ले शहर और मुल्क की नस्लों में भी नहीं, इतनी फीसद नहीं है। बाइबल के एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95 मसीहों ने मसीह के लिए एक भी रूह नहीं जीती। 5 लोगों ने जीतियाँ ने। पूरी दुनिया के अंदर अगर 100 लोग हैं और उनमें से 95 ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक फसल की कटाई नहीं की, अभी तक उन्होंने फसल की कटाई नहीं की। वो मजदूर तो है, वो खादम तो है, लेकिन क्या उन्होंने अपनी उजरत तो ली लेकिन फसल की कटाई नहीं की। और 80% दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो वो गवाही नहीं देते। खुदा जब उनकी जिंदगियों में काम करता, खुदा जब उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूद करते, खुदा जब रहाई देते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी गवाहियाँ जब ये रिबका से हमने सुनी, उसने हर बात के लिए छोटी छोटी गवाही अपनी प्रेसिडेंट के अंदर पेश की, खुदावन के नाम को जलाल दिया। ये सीखने के लिए है। आज अगर फसल की कटाई करनी है तो फिर हमने उन छोटी छोटी गवाहियों को जो खुदावन मौजूदात हमारी जिंदगी के अंदर करता है वो हमें देने हैं। हालेलुया।
उन गवाहियों को देना है, उन कामों का हमें इजहार करना है। 80% ऐसे लोग हैं 20% गवाही दे रहे हैं और 80 दे ही नहीं रहे, और 20 से कम जो है बिशारत का काम कर रहे हैं। 20 लोग सही मायनों में हकीकी जो है वो 20% खादम दुनिया के अंदर जो मजदूर है। इसलिए तो खुदा यीशु मसीह ने कहा फसल तो पक चुकी है लेकिन कटाई करके नहीं करती। कटाई करने के लिए मजदूर चाहिए और वो भी हकीकी मजदूर चाहिए। और 70-71% अरशाद आज़म के लिए, उसके काम के लिए दुनिया के पूरी दुनिया के अंदर जितना खुदा का काम, जितने मजदूर, जितनी फसलें काटनी है, जिसके लिए उसके अखराजात आते हैं, जो खुदा के काम को करने के लिए जो खादम खुदा का काम कर रहे हैं, उनके लिए 71% ऐसे लोग हैं कि जो फंड ही नहीं देते। 71% पूरी दुनिया के अंदर वो फंडिंग नहीं करते। फसल की कटाई के लिए वो अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहे। 71% ऐसे हैं। इसलिए आज जरूरत है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा फसल तो पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं, और मालिक की मिन्नत करो कि वो भी उन्होंने भी मुठियाँ खोलन, या कि पूरी दुनिया के अंदर जो अब कटाई का काम हो रहा है उसके लिए फंड चाहिए है। तो भी मसीह दुनिया का अजीम और बड़ा मजहब बन चुका है। हालेलुया। और फिर भी दुनिया का अजीम मजहब है, और 250 के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 250 के अंदर ये दुनिया का तहाई मजहब बनने जा रहा है। हालेलुया। जोरदार ताली हो जाएगी। 250 के अंदर दुनिया का तहाई मजहब ये बन जाएगा। रूह कुद्दस की नज़ूल और बरसात का बुनियादी मकासद रूहों की आखिरी फसल की कटाई। आखिरी जो मरहला है वो यही है जो खुदा में यीशु मसीह ने कहा, हमने, मैंने, आपने जो इस कलाम को सुन रहे हैं उनको क्या करना है कि फसल की आखिरी कटाई के लिए अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले अपने घरों शुरू करना है। हालेलुया। रूहों की हतमी फसल की कटाई अहम है, और रूहों की फसल के बगैर पेंतिकोस्ट बेमायनी है। अगर फसल की कटाई करनी है तो फिर रूह कुद्दस के बगैर नहीं है, पाकुर के बगैर कटाई नहीं हो सकती। अगर कटाई वही करेगा कि जो रूह कुद्दस और आग से मामूर होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बारिश रूह कुद्दस की हयात नौ और खुदा की रूह के नज़ूल में हमें कटाई करने वाली रूहों के लिए दिया गया है। और खुदा ने कहा तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सके। खुदा की फरमाबरदारी बरकत आपके लेकर आती है। खुदा की जब हम वफादारी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो वो हमारे घरों के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारे मुल्कों के अंदर बरकत को लेकर आती है। लेकिन नाफरमानी अदालत और सज़ा को लेकर आती है। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर आज उन फैसलों में से भी बहुत सारे फैसले करने हैं। और जब मैं कलाम मुकद्दस में मैंने और कलाम में से और बड़ा, मैंने मत्ती की इंजील और उसका 3 बाब और इसकी 12 के अंदर खुदा में यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कलाम में कि उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खिलान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आज खुदा में यीशु मसीह ये काम कर रहे हैं कि गेहूं को, फसल को
खत्ते में जमा किया जा रहा है। दुनिया के अंदर कितने खत्ते खुल गए, पूरब में, पश्चिम में, यरूशलेम में, यहूदिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर खत्ते खुले हुए हैं जिनके अंदर फसलों को जमा किया जा रहा है। लेकिन जहन्नम के अंदर भी लाइन लगी हुई है कि जितने लोग मर रहे हैं, जितने लोग हलाक हो रहे हैं, वो सब उस जहन्नम के अंदर जा रहे हैं और उस खत्ते के अंदर जमा नहीं हो रहे। वहाँ कलाम के अंदर लिखा है कि वहाँ क्या हो रहा है, मगर भूसा को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। कटाई हो रही है, जो जा रहे हैं दुनिया से, जो मर रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, और जो कटाई हो रही फसल दाने और वो खत्तों में जमा हो रहे हैं। आज बहुत हमें ज़रूरत है इस बात की कि खुदा यीशु मसीह ने जो कलाम किया, उन्होंने बादशाही की तालीम दी, उन्होंने तौबा करो ताकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। और वही बात को पौलुस रसूल ने भी दुहराया अमाल और उसके 3 बाब और 19 के आयत में उन्होंने कहा कि बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावन के हुजूर से ताजगी के दिन आए। वो तौबा को और बढ़ाया, उन्हें कहा तौबा करने के बाद ही, जब हम हकीकी तौबा करते हैं, जब हम असली तौबा करते हैं, जब हम बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखते। कलाम में लिखा जो हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे लायक नहीं, वो तौबा नहीं है। जब इसके ऊपर हाथ रख लिया, जब इस कलाम को खोल लिया, जब इस शरीयत को पढ़ा, जो यशवा के अंदर लिखा कि शरीयत की किताब तेरे मुझसे ना हटे और दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तू त्याग करे, अमल करे, तभी इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको ये हुक्म नहीं दिया? यही हुक्म है। अगर हम, हमारी नस्लें, हमारे घराने, हमारे बच्चे, हमारे मुल्क इस पर अमल करता है तो ही ताजगी आती है, तो ही रहाई आती है। वरना जिंदगी के अंदर गम और गुस्से की तहरीक है। करंथियों और उसका 2 करंथियों 7 पर 10 आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता। हालेलुया। खुदापरस्ती का गम, अगर आप खुदापरस्त हैं तो फिर भी गम है, खुदापरस्ती का गम है, दुनिया का नहीं। दुनिया के गम तो हलाकत लाते हैं, दुनिया के गम मौत लेकर आते हैं, दुनिया की मौत के जरिए आपकी जिंदगी के अंदर सजा, पछतावा लेकर आते हैं। लेकिन खुदा परस्ती का गम जो है, जो कलाम में लिखा है कि वो निजात का बाइस है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। आज जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कुछ पछतावे के अंदर हैं। जो दुनिया का गम है वो पछतावा है, या वो उस अंजाम की तरफ है जो निजात है, हमेशा की जिंदगी है। बस हमें एक बड़े फैसले की तरफ हमें जाना है। कलाम मुकद्दस में से मैं आपके साथ मुकाशवा 14 बाब और इसकी 14 आयत में से खुदावन का फरिश्ता कटाई के लिए तैयारी करता है और फसल जो पक गई है उसकी कटाई के लिए जो नबूवती कलाम है, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ताकि उसकी रोशनी के अंदर हम आज उन वेद की बातों को सीखें जो आज का है कि बोल मेरे अंदर बोल, पाकरू मुझसे, आपसे, आज पूरी दुनिया से ये बोल रहा है कि फसल की कटाई जड़ी है वो शुरू हो चुकी है। फसल की कटाई शुरू हो गई है, खत्तों में भरा जा रहा है, भूसा आग में जलाया जा रहा है। कितनी आग पई लग दी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितनी आग लगाई और कितनी आग की तैयारियां हो गई हैं।
بہت آگ لگانے کی تیاریاں بھی کی جائیں گی، لیکن ہم نے اس آگ کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے۔ اس آگ کے لیے جیسے میشک، شدرک اور عبدالنجوب کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا کہ وہ بھی تیار سب، انہوں نے کہتے پادو آگ میں ڈال دو، ہمیں آگ کے اندر ڈال دو۔ تو کلام میں لکھا ہے مکاشفہ 14 باب اور اسی 14 آیت کے اندر لکھا، میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، سنیے گا۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھوں میں تیز دانتری ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی دانتری چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے زمین کی فصل بہت پک گئی ہے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ ہن کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اور کیا کر، اپنی دانتری جو ہے نکال، اپنے کلام، اپنے ہتھیاروں کو نکالو، غرض خداوند کی قدرت اور اس کے زور میں مضبوط بن جاؤ، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، جس سے تم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں آج اس ہتھیار کو نکالنا ہے، ہمیں اس کو تیز کرنا ہے، تاکہ جو فصلیں پکی ہوئی ہیں آج کیا کرنا ہے، اس کی کٹائی کرنی ہے، ہمیں نکلنا ہے، ہمیں چلنا ہے، ہمیں گھروں میں جانا ہے، ہمیں محلوں میں جانا ہے، ہمیں رشتے ناتوں میں، ہمیں بہن بھائیوں عزیزوں کے اندر، ہمیں دنیا کے انتہا کے اندر جانا ہے، تاکہ اس فصل کی کٹائی کی جائے۔ لکھا پاس جو بادل پر بیٹھا تو اس نے اپنی دانتری زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ یسوع نے کلام کو ڈال دیا ہے دنیا کے اندر، اب فصل کی کٹائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آئے ہم اپنی دانتری فصل کی کٹائی جو پک چکی ہے، روح القدس سے اور رات کی کٹائی کا کام ہمیں دن ہی دن میں مکمل کرنا ضرور ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئیے سب اپنے قدموں پہ ہم کھڑے ہوں، کیونکہ روح القدس اور آگ کے بغیر ہم فصل کی کٹائی نہیں کر سکتے، اور اس نے کہا ہے فصل تو پک چکی ہے، اور کیا کرو، دعا کرو کہ خداوند مزدور بھیجے۔ ہم سب مل کر یہی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مالک سے کیا کرو، محنت کرے اور مزدور بھیجے۔ اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، اور جیسے خدا کا روح آپ کو اٹھاتا ہے، مالک کی محنت کرنی شروع کیجیے، تاکہ وہ مزدور بھیجے جو فصل پک چکی ہے اور اس کی کٹائی ہو سکے۔